नमस्कार दोस्तों, IIBF एग्जाम्स गाइड में आपका स्वागत है। आज हम CAIIB BFM के चैप्टर 2 फेमा और LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के जरूरी नियमों को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 28 इंपॉर्टेंट MCQs के माध्यम से फॉरेक्स और रेमिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेमा और LRS का पूरा रिवीजन। इनमें से कौन से स्टेटमेंट लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS की पात्रता के बारे में सही हैं? Which of the following statements regarding eligibility for the liberalized remittance scheme (LRS) are correct? 1. Resident individuals, including minors, are eligible to avail of the LRS. 2. Hindu undivided families (HUFs) and partnership firms are eligible to avail of the LRS. 3. Non-resident Indians (NRIs) are not eligible to remit funds under the LRS. 4. The LRS is available only to corporates and trusts for specific overseas investments. Option A. 1 and 3 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। याद रखें, LRS स्कीम सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, जिसमें माइनर्स यानी नाबालिग भी शामिल हैं। NRI इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म, HUF या ट्रस्ट भी LRS के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। अगला सवाल फेमा एक्ट के सेक्शन 13 में दी जाने वाली पेनल्टी के बारे में है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के सेक्शन 13 के तहत पेनल्टी के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding penalties under section 13 of the Foreign Exchange Management Act (FEMA) are correct? 1. If the amount involved in a contravention is quantifiable, the penalty may be up to thrice the sum involved. 2. If the amount involved in a contravention is not quantifiable, the penalty may be up to 2 lakhs rupees. 3. For a continuing contravention, an additional penalty of up to 5,000 rupees per day may apply. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। फेमा का सेक्शन 13 पेनल्टी के बारे में बताता है। अगर उल्लंघन में शामिल रकम पता लगाई जा सकती है, तो पेनल्टी उस रकम का 3 गुना तक हो सकती है। अगर रकम पता नहीं लगाई जा सकती, तो पेनल्टी 2 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर उल्लंघन जारी रहता है, तो हर दिन के लिए 5,000 रुपए तक की एडिशनल पेनल्टी लग सकती है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला सवाल फेमा एक्ट 1999 में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की परिभाषा से जुड़ा है। फेमा एक्ट 1999 के सबसेक्शन 2(e) के अनुसार कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? As per subsection 2(e) of the Foreign Exchange Management Act 1999, FEMA, what defines a capital account transaction? Option A. A transaction that includes payments connected to trade, interest on loans, and income on investments. Option B. A transaction that alters the assets or liabilities, including contingent liabilities, outside India of persons resident in India. Option C. A transaction limited to expenses for travel, family maintenance, and medical treatment. Option D. Any transaction other than those involving foreign security or removable property. सही जवाब है ऑप्शन बी। फेमा एक्ट का सबसेक्शन 2(e) कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को डिफाइन करता है। यह ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है
जो भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति की भारत से बाहर की संपत्ति या देनदारियों को बदलता है। इसी तरह यह भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति की भारत में संपत्ति या देनदारियों को बदलता है। मान लीजिए, अगर कोई भारतीय विदेश में प्रॉपर्टी खरीदता है तो यह उसकी एसेट को बदलता है, इसलिए यह एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और अब देखते हैं कि फेमा एक्ट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को कैसे डिफाइन करता है। फेमा एक्ट 1999 के सबसेक्शन 2 जे के अनुसार करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की परिभाषा क्या है? As per subsection 2 J of the Foreign Exchange Management Act 1999, FEMA, what defines a current account transaction? Option A. A transaction that alters the assets or liabilities of a person resident in India. Option B. A transaction that includes payments for trade, interest on loans, investment income, travel, and family maintenance. Option C. Any transaction involving the purchase of equity or property abroad. Option D. A transaction that creates a contingent liability outside India. सही जवाब है ऑप्शन बी। फेमा एक्ट का सबसेक्शन 2 जे कहता है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वह है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। इसमें आमतौर पर रोजमर्रा के लेनदेन शामिल होते हैं, जैसे विदेश व्यापार के लिए पेमेंट, लोन पर ब्याज, इन्वेस्टमेंट से इनकम और यात्रा, परिवार के रखरखाव या मेडिकल इलाज जैसे खर्चे। अगर कोई स्टूडेंट विदेश में अपनी ट्यूशन फीस भेजता है तो यह करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगला सवाल फेमा एक्ट 1999 के सेक्शन 10(6) के मुख्य प्रोविजन के बारे में है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा के सेक्शन 10(6) का मुख्य प्रोविजन क्या है? What is the core provision of section 10(6) of the Foreign Exchange Management Act 1999, FEMA? Option A. It empowers the RBI to impose penalties on authorized persons for procedural breaches. Option B. It defines the penalties for contraventions of the Act, such as a fine up to thrice the amount involved. Option C. It states that foreign exchange required must be used for the purpose it was availed for, or surrendered if unused. Option D. It prohibits resident individuals from acquiring foreign securities or immovable property outside India. सही जवाब है ऑप्शन सी। फेमा का सेक्शन 10(6) फॉरेन एक्सचेंज के इस्तेमाल पर जोर देता है। यह साफ कहता है कि आपने जिस काम के लिए फॉरेन एक्सचेंज खरीदा है, आपको उसे उसी काम के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको तय समय के अंदर उसे सरेंडर करना होगा। ऐसा नहीं करना एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। एलआरएस सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और माइनर्स के लिए है। फेमा सेक्शन 13 पेनल्टी 3 गुना 2 लाख या 5,000 प्रतिदिन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विदेशी संपत्ति या देनदारी को बदलता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ट्रेड पेमेंट और यात्रा के खर्चे शामिल हैं। फॉरेन एक्सचेंज को सही काम में इस्तेमाल करें या सरेंडर करें। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस कब शुरू की गई थी? When was the liberalized remittance scheme (LRS) for resident individuals introduced? Option A. 4th February 2004. Option B. 1st July 2005. Option C. 31st December 1999. Option D. 1st October 2020. सही जवाब है ऑप्शन ए। यह एक फैक्चुअल सवाल है।
रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS 4 फरवरी 2004 से शुरू की गई थी। इस स्कीम ने पहली बार आम नागरिकों को एक तय लिमिट तक विदेश में पैसे भेजने और इन्वेस्ट करने की आजादी दी। अगला सवाल, LRS के तहत कौन सा रेमिटेंस प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा रेमिटेंस शेड्यूल 1 के तहत प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंधित नहीं है? Which of the following remittances is not prohibited under Schedule I, non-permissible remittances? Option A. Remittance for purchase of lottery tickets. Option B. Payment related to callback services of telephones. Option C. Purchase of FCCBs issued by Indian companies abroad. Option D. Remittances towards cultural tours. सही जवाब है ऑप्शन डी। LRS में शेड्यूल 1 उन चीजों की लिस्ट है जो पूरी तरह प्रोहिबिटेड हैं, जैसे लॉटरी टिकट, कॉल बैक सर्विसेज या भारतीय कंपनियों द्वारा जारी FCCB खरीदना। लेकिन कल्चरल टूर्स के लिए रेमिटेंस शेड्यूल 1 में नहीं आता। यह शेड्यूल 2 में आता है, जिसका मतलब है कि इसकी इजाजत है, लेकिन इसके लिए संबंधित सरकारी विभाग से अप्रूवल की जरूरत होती है। अगला सवाल शेड्यूल 2 के तहत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए रेमिटेंस लिमिट के बारे में है। शेड्यूल 2 के तहत अगर कोई व्यक्ति विदेश में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज स्पॉन्सर करता है तो उसे कितने अमाउंट से ज्यादा पर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से अप्रूवल लेना होगा? Under Schedule 2, remittance for sponsorship of sports activities abroad by a person other than specified sports bodies requires approval from the Department of Youth Affairs and Sports if the amount exceeds what threshold? Option A. $250,000. Option B. $100,000. Option C. $25,000. Option D. $1 million. सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर कोई इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल की स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है और वह विदेश में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप भेजना चाहता है तो उसे ध्यान रखना होगा। अगर अमाउंट $1,00,000 से ज्यादा है तो उसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है। अगला सवाल, LRS के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में ओवल लिमिट कितनी है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत किसी भी करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में कुल लिमिट कितनी है? What is the overall limit per financial year (FY) under the liberalized remittance scheme (LRS) for any permissible current or capital account transaction or a combination of both? Option A. $25,000. Option B. $100,000. Option C. $250,000. Option D. There is no specific limit. सही जवाब है ऑप्शन सी। यह LRS का सबसे जरूरी नियम है। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल करंट या कैपिटल अकाउंट या दोनों को मिलाकर कुल $2,50,000 तक आजादी से भेज सकता है। मान लीजिए आपने $50,000 घूमने पर खर्च किए और $2,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपकी लिमिट उस साल के लिए पूरी हो गई। LRS के तहत रेमिटेंस करते समय कौन सा डॉक्यूमेंट देना जरूरी है, चाहे अमाउंट कितना भी हो? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत रेमिटेंस की रकम चाहे कितनी भी हो, देना अनिवार्य है। Under the liberalized remittance scheme, LRS is mandatory irrespective of the amount of the remittance. Option A.
Form 2. Option B. PAN. Option C. A copy of the visa. Option D. An estimate from a hospital. सही जवाब है ऑप्शन बी। एलआरएस स्कीम के तहत चाहे आप कितना भी छोटा या बड़ा अमाउंट भेज रहे हों, अपना पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर देना मैंडेटरी यानी अनिवार्य है। यह नियम टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स और ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई माइनर भेज रहा है तो उसके गार्जियन का पैन इस्तेमाल होता है। क्या विदेश से पैसा वापस लाने पर एलआरएस की लिमिट फिर से बढ़ जाती है? जानते हैं अगले सवाल में। अगर कोई व्यक्ति एक साल में $2.5 लाख भेजता है और बाद में इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस ले आता है, तो क्या उसी साल उसकी एलआरएस लिमिट फिर से बढ़ जाती है? An individual remits $250,000 in a financial year and later brings back the proceeds of the investments made abroad. This repatriation restores the individual's LRS limit for that same financial year. Option A. True, the limit is fully restored. Option B. True, but the limit is only restored up to $100,000. Option C. False. Option D. False, unless prior approval from RBI is obtained. सही जवाब है ऑप्शन सी। यह स्टेटमेंट फॉल्स यानी गलत है। एक बार जब कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी $2.5 लाख की पूरी लिमिट इस्तेमाल कर लेता है, तो उसे उस साल और पैसे भेजने की इजाजत नहीं होती। अगर वो विदेश से इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस भारत ले भी आता है, तब भी उसकी उस साल की लिमिट बहाल नहीं होती। लिमिट अगले फाइनेंशियल ईयर में ही रीसेट होती है। अगला सवाल, प्राइवेट विजिट के लिए फॉरेन एक्सचेंज लेते समय ज्यादा से ज्यादा कितना कैश दिया जा सकता है? प्राइवेट विजिट के लिए एलआरएस के तहत कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितना कैश दे सकता है, जिसके ऊपर की रकम बैंक अकाउंट से ही देनी होगी? When handling remittances for private visits under LRS, what is the maximum amount of cash that can be accepted from an individual, beyond which the transaction must be routed through their bank account? Option A. 50,000 rupees. Option B. 1 lakh rupees. Option C. $3,000 or its equivalent. Option D. There is no limit on cash acceptance. सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट विजिट यानी निजी यात्रा के लिए फॉरेन एक्सचेंज ले रहा है, तो वह कैश में सिर्फ 50,000 रुपए तक ही दे सकता है। अगर उसे 50,000 रुपए से ज्यादा का फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो बाकी का पेमेंट उसे अपने बैंक अकाउंट के जरिए ही करना होगा। यह नियम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मदद करता है। विदेश यात्रा पर जाने वालों को ज्यादा से ज्यादा कितना फॉरेन करेंसी नोट्स यानी कैश मिल सकता है? इराक, लीबिया, ईरान और रशियन फेडरेशन को छोड़कर बाकी देशों में जाने वाले यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा कितना फॉरेन एक्सचेंज करेंसी नोट्स यानी कैश के रूप में दिया जा सकता है? What is the maximum amount of foreign exchange that can be released in the form of foreign currency notes, cash, for travelers proceeding to countries other than Iraq, Libya, Iran, and the Russian Federation? Option A. $1,000. Option B. $3,000. Option C. $5,000. Option D. The full exchange amount may be released in cash. सही जवाब है ऑप्शन बी। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाता है, कुछ खास देशों को छोड़कर, तो उसे कुल फॉरेन एक्सचेंज का सिर्फ $3,000 तक ही कैश, करेंसी नोट्स
में ले जाने की इजाजत होती है। बाकी का अमाउंट ट्रैवलर्स चेक या फॉरेक्स कार्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में ले जाना होता है। कुछ देशों जैसे इराक या लीबिया के लिए यह लिमिट $5,000 है। विदेश से लौटने पर बचा हुआ फॉरेन एक्सचेंज कितने दिनों के अंदर सरेंडर करना होता है? जब कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल प्राइवेट विजिट से भारत लौटता है तो उसे अपना बचा हुआ फॉरेन एक्सचेंज कितने समय के भीतर एक ऑथराइज्ड डीलर को सरेंडर कर देना चाहिए? A resident individual returns to India with unutilized foreign exchange from a private visit. What is the time frame within which this unutilized exchange must be surrendered to an authorized dealer? AD. Option A. Within 30 days from the date of return. Option B. Within 60 days from the date of return. Option C. Within 180 days from the date of return. Option D. There is no mandatory period for surrender. सही जवाब है ऑप्शन सी। फेमा के नियमों के मुताबिक अगर आप विदेश यात्रा से वापस आते हैं और आपके पास फॉरेन एक्सचेंज बच गया है तो आपको उसे वापस आने की तारीख से 180 दिनों के अंदर किसी ऑथराइज्ड डीलर या बैंक को सरेंडर करना होता है। आप चाहें तो $2,000 तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट सरेंडर करना जरूरी है। अगला सवाल LRS रेमिटेंस पर लगने वाले TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में है। LRS रेमिटेंस के लिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding tax collected at source (TCS) under the Liberalized Remittance Scheme (LRS) are correct as of April 2025? If a remitter under LRS does not furnish PAN or Aadhaar, the applicable TCS rate is 20%. For education remittances made through an education loan obtained from a financial institution, no TCS is levied up to 10 lakh rupees in a financial year, and even above that, the TCS rate is nil. For all other general LRS remittances, such as investment or travel, TCS at 20% applies on the portion exceeding 10 lakh rupees in a financial year, excluding education and medical remittances. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर कोई LRS रिमिटर पैन या आधार नहीं देता तो TCS रेट 20% लागू होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब एजुकेशन लोन से विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे गए राशि पर 10 लाख तक कोई TCS नहीं लगता और उससे ऊपर भी रेट 0 है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि बाकी सभी सामान्य LRS ट्रांजैक्शन जैसे इन्वेस्टमेंट या ट्रैवल पर 10 लाख से ऊपर 20% TCS लागू होता है। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हैं। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का रिवीजन करते हैं। पैसा वापस लाने से उसी साल LRS लिमिट बहाल नहीं होती। प्राइवेट विजिट के लिए रेमिटेंस में 50,000 तक ही कैश दे सकते हैं। ज्यादातर देशों के लिए ट्रैवल कैश लिमिट $3,000 है। बचा हुआ फॉरेक्स 180 दिनों में सरेंडर करना जरूरी है। अप्रैल 2025 से LRS पर 10 लाख से ऊपर 20% TCS लगता है और एजुकेशन लोन पर नहीं। LRS के तहत गिफ्टिंग के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding gifting under the Liberalized Remittance Scheme (LRS) are correct? 1. A resident individual is prohibited from gifting to another resident in foreign currency for the credit of the latter's foreign currency account held abroad. 2. The definition of relative for LRS gifting purposes is based on the Companies Act, 2013. 3.
under the applicable definition, an individual's sister's husband is considered a relative? Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला स्टेटमेंट सही है। एक रेसिडेंट दूसरे रेसिडेंट को विदेश में रखे उसके फॉरेन करेंसी अकाउंट में गिफ्ट नहीं दे सकता। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एलआरएस के लिए रिश्तेदार की परिभाषा कंपनीज एक्ट 2013 से ली गई है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कंपनीज एक्ट की परिभाषा में कई रिश्तेदार शामिल हैं, लेकिन सिस्टर्स हस्बैंड यानी बहन का पति उस लिस्ट में रिलेटिव नहीं माना जाता है। अगला सवाल, विदेश में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एलआरएस की लिमिट्स क्या हैं? विदेश में मेडिकल इलाज के लिए एलआरएस रेमिटेंस के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding LRS remittances for medical treatment abroad are correct? 1. An authorized dealer may release foreign exchange exceeding the $250,000 limit for a patient if the remittance is supported by an estimate from a hospital or doctor. 2. A person accompanying the patient as an attendant is eligible for a separate LRS limit of up to $250,000. 3. The LRS limit for an attendant is not separate and must be accommodated within the patient's $250,000 limit. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट एक खास कैटेगरी है। अगर हॉस्पिटल या डॉक्टर से मिला एस्टीमेट $2.5 लाख से ज्यादा है तो एडी बैंक बिना आरबीआई अप्रूवल के वो अमाउंट रिलीज कर सकता है। दूसरा, मरीज के साथ जाने वाले अटेंडेंट को भी अपनी जरूरतों के लिए अलग से $2.5 लाख की एलआरएस लिमिट मिलती है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को बिजनेस ट्रिप पर भेजे तो क्या यह उसकी पर्सनल एलआरएस लिमिट में गिना जाएगा? एक रेसिडेंट व्यक्ति अपने एम्प्लॉय को बिजनेस ट्रिप पर भेज रहा है और कंपनी सारा खर्च उठा रही है। यह ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय की पर्सनल एलआरएस लिमिट को कैसे प्रभावित करता है? A resident individual is sending an employee on a business trip, and the company is bearing all the expenses. How does this transaction relate to the employee's personal LRS limit? Option A. The expenses are deducted from the employee's $250,000 LRS limit. Option B. The expenses are outside the purview of the LRS and do not affect the employee's limit. Option C. The expenses are permitted but require prior RBI approval if they exceed $250,000. Option D. The company can use its own LRS limit, which is separate from the employee's limit. सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को बिजनेस ट्रिप, कॉन्फ्रेंस या ट्रेनिंग के लिए भेजती है और सारा खर्च खुद उठाती है तो यह ट्रांजैक्शन एलआरएस के दायरे से बाहर माना जाता है। मान लीजिए आपकी कंपनी ने आपके बिजनेस ट्रिप पर $50,000 खर्च किए तो भी आपकी अपनी $2.5 लाख की पर्सनल एलआरएस लिमिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप उस साल अपने निजी काम के लिए पूरे $2.5 लाख इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई के लिए विदेश जाता है तो फेमा के तहत उसे क्या माना जाता है?
LRS के मकसद के लिए पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स को माना जाता है और उनके मौजूदा रेसिडेंट अकाउंट्स को NRO अकाउंट्स में बदल देना चाहिए। For LRS purposes, students going abroad for studies are considered as, and their existing resident accounts should be designated as NRO accounts. Option A. Resident but not permanently resident. Option B. Non-resident Indians, NRIs. Option C. Overseas citizens of India, OCIs. Option D. Foreign nationals. सही जवाब है ऑप्शन बी। फेमा के नियमों के मुताबिक जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए विदेश जाता है तो उसे NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन माना जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत में उनके जो भी मौजूदा रेसिडेंट सेविंग्स अकाउंट हैं उन्हें NRO यानी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स में बदल दिया जाए। अगला सवाल, LRS के तहत ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ODI पर क्या पाबंदियां हैं? LRS के तहत ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ODI के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding prohibitions for overseas direct investment ODI under LRS are correct? 1. Resident individuals are prohibited from making ODIs in entities engaged in real estate business or banking business. 2. The joint venture, JV, or wholly owned subsidiary, WOS, must be an operating entity. 3. The JV or WOS is permitted to acquire its own step-down subsidiaries to expand operations. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए। LRS के जरिए ODI यानी विदेश में सीधे निवेश करने पर कुछ पाबंदियां हैं। पहला, आप रियल एस्टेट या बैंकिंग बिजनेस करने वाली विदेशी कंपनी में निवेश नहीं कर सकते। दूसरा, आप जिस विदेशी कंपनी, जॉइंट वेंचर या सब्सिडियरी में निवेश कर रहे हैं वह एक ऑपरेटिंग एंटिटी होनी चाहिए, यानी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल में बिजनेस करती हो। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि LRS के तहत बनी JV या WOS को अपनी स्टेप डाउन सब्सिडियरी बनाने की इजाजत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का रिवीजन करते हैं। गिफ्टिंग के लिए रिश्तेदार की परिभाषा में सिस्टर्स हस्बैंड नहीं आते। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए $2.5 लाख की लिमिट पार की जा सकती है। मरीज के अटेंडेंट को अलग से LRS लिमिट मिलती है। बिजनेस ट्रिप का खर्च एम्प्लॉय की पर्सनल LRS लिमिट में नहीं गिना जाता। ODI रियल एस्टेट में नहीं हो सकता और स्टेप डाउन सब्सिडियरी मना है। LRS के तहत ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ODI करने की प्रोसीजरल जरूरतों के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding the procedural requirements for making an overseas direct investment ODI under LRS are correct? 1. If the ODI is in an existing entity and valued at less than $5 million, a valuation certificate from a chartered accountant is required. 2. If the ODI is in an existing entity and valued at more than $5 million, a valuation by a SEBI registered merchant banker is required. 3. The resident individual must submit documentary evidence of the investment, such as share certificates, to the AD bank within 6 months of the remittance. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C.
2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जब आप एलआरएस के तहत किसी मौजूदा विदेशी कंपनी में निवेश करते हैं, तो वैल्यूएशन जरूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट 5 मिलियन यूएस डॉलर से कम है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट काफी है। लेकिन अगर यह 5 मिलियन डॉलर से ज्यादा है, तो सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन करानी होगी। साथ ही निवेश करने के 6 महीने के अंदर आपको उस इन्वेस्टमेंट का सबूत, जैसे शेयर सर्टिफिकेट, अपने एडी बैंक को जमा कराना जरूरी है। अगला सवाल, एलआरएस के तहत कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए बैंक में कितने पुराने अकाउंट की जरूरत होती है? जब कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल एलआरएस के तहत सभी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए एक खास बैंक ब्रांच को चुनता है, तो उसका उस ब्रांच में कम से कम कितने समय से अकाउंट होना चाहिए? When a resident individual designates a specific bank branch for effecting all capital account transactions under LRS, what is the minimum period they should have maintained an account with that branch? Option A. 3 months. Option B. 6 months. Option C. 1 year. Option D. There is no minimum period specified. सही जवाब है ऑप्शन सी। नियमों के मुताबिक जब कोई व्यक्ति कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए किसी एडी बैंक की ब्रांच को डेजिग्नेट करता है, तो यह जरूरी है कि रेमिटेंस की तारीख से पहले उसने उस ब्रांच में कम से कम 1 साल तक अकाउंट मेंटेन किया हो। यह नियम केवाईसी और ड्यू डिलिजेंस का एक जरूरी हिस्सा है। विदेश में किए गए निवेश से मिलने वाले डिविडेंड को कितने दिनों में भारत वापस लाना जरूरी है? जिन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हें डिविडेंड या रॉयल्टी जैसे सभी बकाये उनके ड्यू होने के कितने समय के भीतर भारत वापस लाने होते हैं? Resident individuals who have made an overseas direct investment, ODI, must repatriate all dues, such as dividends and royalties, to India within what period of such amounts falling due? Option A. 30 days. Option B. 60 days. Option C. 90 days. Option D. 180 days. सही जवाब है ऑप्शन बी। यह एक सख्त कंप्लायंस रूल है। अगर आपने विदेश में ओडीआई किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला कोई भी ड्यू, जैसे डिविडेंड, रॉयल्टी या टेक्निकल फीस, जैसे ही वह ड्यू होता है, उसे 60 दिनों के भीतर भारत में वापस लाना, यानी रिपेट्रिएट करना, अनिवार्य है। अगला सवाल, एलआरएस के तहत किसी एनआरआई रिश्तेदार को रुपए में लोन देने के क्या नियम हैं? जब एक रेसिडेंट इंडिविजुअल एलआरएस के तहत किसी एनआरआई करीबी रिश्तेदार को इंडियन रूपी में लोन देता है, तो वह लोन होना चाहिए और उसकी मैच्योरिटी कम से कम 1 साल होनी चाहिए। When a resident individual extends a loan in INR to an NRI close relative under the LRS, the loan must be and have a minimum maturity of 1 year. Option A. Interest free. Option B. At a floating interest rate. Option C. Secured by collateral. Option D. At a fixed interest rate. सही जवाब है ऑप्शन ए। एलआरएस के तहत एक रेसिडेंट इंडिविजुअल अपने किसी एनआरआई करीबी रिश्तेदार को इंडियन रूपी में लोन दे सकता है, लेकिन इसकी 2 जरूरी शर्तें हैं। पहली, यह लोन इंटरेस्ट फ्री यानी ब्याज मुक्त होना चाहिए, और दूसरी, इसकी मिनिमम मैच्योरिटी 1 साल की होनी चाहिए। साथ ही यह पैसा भारत में एनआरओ अकाउंट में ही क्रेडिट होना चाहिए। ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को एलआरएस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग कितनी जल्दी करनी होती है?
ऑथराइज्ड डीलर यानी एडी बैंक्स को रेसिडेंट इंडिविजुअल्स द्वारा किए गए एलआरएस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट कितनी फ्रीक्वेंसी पर करनी होती है? How frequently are authorized dealer (AD) banks required to report transactions undertaken by resident individuals under the LRS? Option A. On a monthly basis. Option B. On a quarterly basis. Option C. On a daily basis. Option D. On an annual basis. सही जवाब है ऑप्शन सी। एलआरएस की निगरानी के लिए अप्रैल 2018 से एक डेली रिपोर्टिंग सिस्टम लागू है। सभी ऑथराइज्ड डीलर्स को हर दिन हुए एलआरएस ट्रांजैक्शंस की जानकारी अगले वर्किंग डे के बिजनेस खत्म होने तक XBRL प्लेटफॉर्म पर अपलोड करनी होती है। इससे आरबीआई को रियल टाइम डेटा मिलता रहता है। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का रिवीजन करते हैं। ओडीआई वैल्यूएशन $5 मिलियन से कम पर सीए करता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए 1 साल पुराना बैंक अकाउंट चाहिए। ओडीआई से मिलने वाला डिविडेंड 60 दिनों में भारत वापस लाना जरूरी है। एनआरआई रिश्तेदार को लोन इंटरेस्ट फ्री और 1 साल के लिए होना चाहिए। एडी बैंक्स को एलआरएस ट्रांजैक्शन रोज रिपोर्ट करने होते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी एमएल फ्रेमवर्क के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding anti-money laundering (AML) frameworks are correct? 1. The Financial Action Task Force (FATF) is an intergovernmental organization formed to combat money laundering and terrorist financing. 2. The Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 is an act designed to prevent money laundering and provide for the confiscation of property derived from it. 3. The primary purpose of the PMLA 2002 is to define the close relatives who are eligible for LRS gifts. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 सही है। FATF एक इंटरगवर्नमेंटल संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ती है। स्टेटमेंट 2 भी सही है। PMLA 2002 भारत का कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है और उससे बनी संपत्ति को जब्त करता है। स्टेटमेंट 3 गलत है। LRS गिफ्ट के लिए क्लोज रिलेटिव की परिभाषा PMLA से नहीं बल्कि कंपनीज एक्ट 2013 से ली गई है। अगला सवाल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी APR के बारे में है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी APR के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Which of the following statements regarding the annual performance report (APR) for overseas investments are correct? 1. APR stands for Annual Performance Report, which must be submitted on the performance of the overseas entity. 2. The APR must be submitted to the RBI through the designated AD bank. 3. The deadline for submitting the APR each year is 31st December. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। APR का मतलब है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो आपकी विदेशी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में होती है। यह रिपोर्ट हर साल RBI को
अपने डेजिग्नेटेड एडी बैंक के जरिए जमा करनी होती है और इस एपीआर को सबमिट करने की डेडलाइन हर साल 31 दिसंबर होती है। आखिरी सवाल, एलआरएस के तहत रेमिटेंस करते समय केवाईसी के अलावा और क्या डिक्लेयर करना जरूरी है? केवाईसी कंप्लायंस के अलावा एलआरएस के तहत रेमिटर को ऑथराइज्ड डीलर को संतुष्ट करने के लिए क्या डिक्लेयर करना जरूरी है? In addition to KYC compliance, what must a remitter under the LRS declare to the satisfaction of the authorized dealer? Option A. The estimated date of return to India. Option B. The source of funds. Option C. A declaration that they are not on the FATF caution list. Option D. The expected return on the investment. सही जवाब है ऑप्शन बी। एलआरएस ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ केवाईसी पूरा होना ही काफी नहीं है। रेमिटर को यह भी डिक्लेयर करना होता है कि वह जो पैसा भेज रहा है उसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, यानी यह पैसा कहां से आया है। बैंक को इस डिक्लेरेशन से संतुष्ट होना जरूरी है, तभी वह ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा। मान लीजिए आपको अपनी सैलरी या सेव को डिक्लेयर करना पड़ सकता है। आज हमने फेमा और एलआरएस के सारे जरूरी पॉइंट्स रिवाइज किए, एलिजिबिलिटी, लिमिट, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस और ओडीआई रिपोर्टिंग तक। CAIIB BFM एग्जाम से पहले इन कंप्लायंस रूल्स को जरूर दोहरा लें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।